the ninth chapter. We are going to start special purpose subsidiary book, right? So I hope you all are ready with your notebook. Now I'm going to share. So today's chapter name is same, books of original entry. We are doing a study from the journal entry, and you know that journal entry and subsidiary book both are the part of books of original entry. Okay, so in previous class student we had studied the subsidiary book named cash book. Okay, so cash book is compulsory to maintain by each and every business organization because they deal with in the cash and they want to know the cash balance at a point of time. So they maintain cash book. But a special purpose subsidiary book, this is not mandatory to maintain all books. Any of the books for the special purpose any businessman can maintain, or they can maintain all the subsidiary book. It depends up to the businessman, up to the accountant to record all the transactions. Okay, so now let us study here. In previous chapter we have studied about preparation of cash book. You know कि हम लोग पिछले चैप्टर में कैश बुक पढ़े हैं, और कैश बुक कितने टाइप के होते हैं वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया. इट इज सेइंग इन कैश बुक वी रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शंस ऑफ द एंट्री, राइट. हम लोग कोई भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन नहीं करते थे वहां. जितना भी कैश होता था, चाहे वो हम रिसीव कर रहे हो या पेमेंट कर रहे हो किसी भी चीज के लिए, सो वी यूज टू रिकॉर्ड इन कैश बुक. But here it is saying the non-cash transactions are recorded in other special purpose subsidiary book. ठीक है, सो कुछ नॉन कैश ट्रांजेक्शंस भी होता है. मतलब नॉन कैश मीन्स जिसका कि पेमेंट हम इमीडिएटली नहीं करते. ठीक है, उधार यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शंस करते हैं, राइट. सो इसका भी रिकॉर्ड जब हम करते हैं तो इसके लिए हम कुछ अलग बुक बनाते हैं जिसका नाम है स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक, यानी अकॉर्डिंग टू आवर पर्पस. ओके, नेमली क्या क्या नाम है मेनली हम लोग स्टडी करते हैं. सबसे पहला जो है, यू विल सी ऑन योर स्क्रीन, परचेज बुक, राइट. देखो परचेज बुक क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे अभी. तो सबसे पहला आपको जो पढ़ना है स्पेशल पर्पस में परचेज बुक. सेकेंड आपको पढ़ना है सेल्स बुक, राइट. Already I have discussed about all these books in the previous chapters while I was teaching the cash book. Now, after that, return book. Return book includes two types of return book. One is purchase return book. Second one is sales return book, right? So students, these are the books which we have to study, and after that, देखो कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो न तो कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, न तो परचेस बुक, न ही सेल्स बुक और रिटर्न बुक कहीं रिकॉर्ड नहीं होता. तो उस ट्रांजेक्शन्स के लिए हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं और उस जर्नल एंट्री को नाम देते हैं जर्नल प्रॉपर. तो जर्नल एंट्री और जर्नल प्रॉपर में डिफरेंस क्या है? जर्नल एंट्री में हम लोग करते हैं वी डू record all transactions, all business transaction we record in the journal entry according to date wise. This is called journal entry. But in journal proper we record only those transactions which do not record in cash book, purchase book, sales book, purchase return book, sales return book. Okay, कहीं नहीं होता तो उसका रिकॉर्ड हम लोग जर्नल एंट्री जब करते हैं तो उसे कहते हैं जर्नल प्रॉपर. मीन्स we do journal entry for the proper transactions only, not for all transactions, right? So this is what we have to study. You can take this screenshot of it. So you all have remember. So now students, I'll be discussing little bit about the previous chapter. It is pertinent to note that it is not essential for business firms to keep and maintain all the above mentioned special purpose subsidiary book. तो कह रहा है कि एक बिजनेसमैन के लिए ये इट इज नॉट एसेंशियल, ये आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है कि सारा स्पेशल बुक रखे, वो सारा स्पेशल पर्पस सब्सिडी बुक मेंटेन करके रखे. दे मे कीप एनी ऑफ दीज बुक्स
डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट्स, राइट। सो अगर वो क्रेडिट परचेस कर रहा है तो परचेस बुक मेंटेन कर सकता है, क्रेडिट पे सेल कर रहा है तो सेल्स बुक भी मेंटेन कर सकता है, ठीक है। अगर वो क्रेडिट परचेस क्रेडिट सेल्स नहीं कर रहा है, सिर्फ कैश परचेस और कैश सेल्स है, नो नीड टू मेंटेन दिस काइंड ऑफ बुक, ओके। सो इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, ओके। सो नाउ अब हम लोग देखते हैं इसमें तो इट इज सेइंग परचेस बुक होता क्या है। सबसे पहले हम लोग परचेस बुक पढ़ेंगे आज। पिछले क्लासेस में भी हमने डिस्कस किया है कई बार परचेस बुक क्या होता है, सेल्स बुक क्या होता है, ठीक है। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। सो परचेस बुक, देखो बेटा परचेस वर्ड हमने आपको बताया है, इवन रिवीजन क्लास में भी आप देख सकते हो, जो मैंने एक बार टर्म्स पढ़ाया था और ई लाइब्रेरी में भी आपको मैंने भेजा हुआ है। इन अकाउंटेंसी जनरली purchase word is used for the goods only, for the purchase of goods only, right? So purchase book, it is saying that this is the book in which we record credit purchase of goods only. तो ध्यान रहे परचेस बुक क्या होता है। परचेस बुक एक ऐसा बुक है जिसमें हम जितने रुपए का गुड्स उधार खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे, उधार, गुड्स उधार खरीदेंगे, सिर्फ उसी का रिकॉर्ड करेंगे, राइट। तो दिस इज द बुक इन विच वी रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली। गुड्स मीन्स हियर in which a trader deals. गुड्स क्या होता है, जिस चीज में एक ट्रेडर डील करता है, मीन्स जिस भी आइटम में परचेज और सेल्स करता है। जैसे अगर आपकी गोलगप्पे की दुकान है, सो गोलगप्पा आप खरीद रहे हो और बेच रहे हो, तो ये गोलगप्पा क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। अगर मोमोज की दुकान है तो मोमोज में डील कर रहे हैं तो मोमोज क्या होगा, गुड्स हो जाएगा। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की दुकान है तो जो फ्रिज, टीवी, एसी, जिस चीज में आप परचेज सेल कर रहे हो वो गुड्स हो जाएगा। अगर कार का शोरूम है तो कार आप परचेज सेल कर रहे हो तो कार गुड्स हो जाएगा। तो गुड्स में बी एनीथिंग व्हाट अ ट्रेडर डील्स, जिसमें ट्रेडर डील करता है, ठीक है। सो याद रखो आप लोग। सो अब देखो एग्जांपल मैं बता रहा हूं, इफ वी डील इन फर्नीचर, देखो बेटा अगर हम फर्नीचर में डील कर रहे हैं, यानी फर्नीचर की खरीद बिक्री कर रहे हैं, फर्नीचर की दुकान है हमारी, सो फर्नीचर विल बी ट्रीटेड एज गुड्स। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में डील कर रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस क्या हो जाएगा हमारा, जैसे रेफ्रिजरेटर, एसी, टेलीविजन एक्सेट्रा विल बी ट्रीटेड एज गुड्स, ठीक है। अगर आपकी किताब और स्टेशनरी की दुकान है तो किताब और स्टेशनरी आपके लिए गुड्स हो जाएगा, क्योंकि हम उसमें परचेज सेल कर रहे हैं, ठीक है। और बट आपको ध्यान रखना है कि गुड्स का ही परचेज हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। मान लो अपने कस्टमर को डिलीवर करने के लिए गुड्स को आपने एक डिलीवरी वैन खरीदा, सो डिलीवरी वैन इज एन एसेट्स, इट इज नॉट अ गुड्स। क्योंकि देखो बेटा गुड्स क्या होता है, गुड्स रेफर्स टू ऑल दोज थिंग्स विच वी बाय फॉर रीसेल, ठीक है, विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। और एसेट्स क्या होता है, assets refers to all those things which we buy not for resale but we use it over a long period of time in our business for the smooth functioning of it and on which we charge depreciation gradually. सो डिलीवरी वैन क्या है, जिसको कि हम अपने बिजनेस में यूज करेंगे ईयर टू ईयर, ताकि हम अपने कस्टमर को गुड्स डिलीवर कर सके, और इस पर हम डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं, क्योंकि जब डिलीवरी वैन हम यूज़ करेंगे, रोज़ हम ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देंगे अपने कस्टमर्स को, गुड्स डिलीवर करेंगे, तो उसमें गिरावट होगी, वियर एंड टीयर होगा, तो उससे इसकी कीमत पे असर पड़ेगा। तो जितना रुपया कीमत कम होगा उस वैन का, वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो ध्यान रखो गुड्स क्या होता है,
और एसेट्स क्या होता है आपके सामने है, आप इसको नोट कर लो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। डन, चलो ठीक है। अब हम पूछते हैं दीपल, बेटा आर यू लिसनिंग? Yes, sir. हाँ बेटा, सो डू यू डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ गुड्स? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। सो अच्छा बेटा, मान लो दीपल आपकी बुक स्टॉल है, आर यू गेटिंग मी? दीपल, यू हैव Yes, बुक sir. स्टॉल, आपकी बुक की दुकान है, ठीक है। सो आप की दुकान में जो बुक है आप सेल करने के लिए रखी हो, वो बुक क्या कहलाएगा आपके लिए, गुड्स या एसेट्स? Goods. गुड्स होगा, वेरी गुड। अच्छा, अपने कस्टमर को जब बिल दोगी, बुक बेचोगी तो बिल दोगी ही, और बिलिंग मशीन से टाइप करके मान लो बिल निकाला आपने, तो वो बिलिंग मशीन जो होगा वो आपके लिए क्या होगा, गुड्स होगा कि एसेट्स होगा? Sir, it's. एसेट्स होगा, वेरी गुड, एग्जैक्टली। सो बहुत अच्छा, मतलब सभी को समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे परचेस बुक के बारे में समझ लिए कि है क्या परचेस बुक, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग, अगला स्लाइड, ठीक है। सो फीचर्स ऑफ परचेस बुक, अब हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ परचेस बुक। देखो, सारे बुक्स के बारे में एक एक करके एक एक दिन में हम लोग पढ़ेंगे। परचेस बुक बहुत ही सिंपल बुक है बेटा, और याद रखो जितना उधार खरीदेंगे उतना ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ परचेस बुक, परचेस बुक के क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या उसके लक्षण हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो हम शेयर कर रहे हैं अभी। फीचर्स ऑफ परचेस बुक, यू विल सी, जैसा कि मैंने बताया, ओनली क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड। क्या रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, राइट। तो कह रहा है इफ द फर्म इज इधर trading in such goods or it is used as material for the production purpose। देखो गुड्स होता क्या है, बता रहा है वही चीज बार बार, कि सबसे पहला चीज कि परचेस बुक में इसका पहला फीचर है कि जितने रुपए का गुड्स हम उधार खरीदेंगे सिर्फ वही गुड्स का रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इस गुड्स का फर्म या तो इसको एज ए ट्रेडिंग में यूज करेगा, मतलब डायरेक्ट सेल करेगा, या तो उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज करता है प्रोडक्शन पर्पस के लिए। तो गुड्स देखो तुम्हारा या तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल होता है या तो परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स होता है। रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो उससे हम गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं अपने यहाँ, और फिनिश्ड गुड्स करते हैं तो डायरेक्टली ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो दोनों ही गुड्स में आता है, चाहे रॉ मटेरियल हो या फिनिश्ड गुड्स हो। नेक्स्ट, cash purchase of goods is not recorded in purchase book, rather it is recorded in the cash book। yes of course, हम लोग अभी पिछला चैप्टर पढ़े हैं कैश बुक, तो आपको याद होगा सॉरी, तो जितना भी कैश परचेज होता था हम लोग कैश बुक में लिखते थे और कैश सेल्स कैश बुक में लिखते थे, है ना। तो क्रेडिट जितना होगा वो परचेज बुक में लिखेंगे। थर्ड, इसके फीचर्स बता रहा है कि क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। अगर हमने कोई एसेट्स उधार खरीदा उसका रिकॉर्ड हम लोग नहीं करेंगे परचेज बुक में। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि हमने जो पढ़ा, एक सब्सिडरी बुक, एक का नाम है कैश बुक, एक का नाम है परचेज बुक, एक का नाम है सेल्स बुक, और एक परचेज रिटर्न, एक सेल्स रिटर्न। बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल बुक हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो कैश बुक में कैश परचेज सेल्स का रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो गुड्स हो चाहे एसेट्स हो, ठीक है। परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स का रिकॉर्ड करते हैं केवल, सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स का रिकॉर्ड करेंगे, और परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न में इसी गुड्स के रिटर्न का रिकॉर्ड करते हैं। अब रही बात कि हमने अगर उधार खरीदा एसेट्स, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स, तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ये तो किसी बुक में नहीं जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे जिसको कि जर्नल प्रॉपर कहते हैं। जर्नल प्रॉपर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ
सब्सिडरी बुक। ओके, सो परचेज बुक को हम लोग परचेज जर्नल भी कहते हैं या परचेज डे बुक भी कहते हैं, सबका नाम एक ही है। परचेज बुक is original book of entry, it is a subsidiary book, it is purchase journal, it is purchase day book, सब कॉमन है, ठीक है। लेकिन जो हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे उधार एसेट्स खरीदने के लिए, उसको जर्नल प्रॉपर कहेंगे, ठीक है। तो अब आगे आते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। So students, now we will study a source document। अब क्वेश्चन ये होता है कि हम लोग जब भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का अपना एक एविडेंस होता है। एविडेंस क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट, जिसको देख कर कि हम पता कर सकते हैं कि हमने गुड्स खरीदा है, बेचा है, कितने रुपए का, किससे खरीदा, किससे बेचा, वो सारा कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट से पता चलता है। तो परचेस बुक के लिए जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है उसका नाम क्या है, ये हम लोगों को समझना है, ठीक है। सो यहाँ आप देखो लिखा है, द ट्रांजेक्शंस ऑफ क्रेडिट परचेज आर रिकॉर्डेड इन द परचेसेस बुक ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस और बिल। हमने येलो फॉन्ट से लिखा है ताकि आप समझ सको, अच्छे से ध्यान में रख सको। तो कह रहा है द ट्रांजेक्शंस ऑफ क्रेडिट परचेसेस आर रिकॉर्डेड इन द परचेसेस बुक ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस और बिल गिवन टू द बायर, गिवन टू द बायर बाय द सेलर ऑफ द गुड्स। यानी सेलर बायर को देता है इनवॉइस, और इनवॉइस को ही हम बिल कहते हैं, ठीक है। तो इनवॉइस कंटेन्स, क्या क्या होता है इनवॉइस में? जब हमको बिल मिलता है, अगर आप एक मोबाइल फ़ोन भी खरीदते हो तो उसका बिल लेते हो, तो उसमें क्या होता है? कंटेन्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कंसर्निंग क्वालिटी ऑफ गुड्स, यानी आपने कौन सा गुड्स खरीदा है, उसकी क्या रेंज क्वालिटी है। क्वांटिटी, कितने नंबर ऑफ पीसेस में खरीदा, उसका रेट क्या है, कितने रेट से खरीदा, टोटल कितना आपको देना है, अगर से डिस्काउंट दिया जा रहा है, ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना है, ठीक है। तो परचेस बुक में इनवॉइस में कैश डिस्काउंट नहीं होता, वो कैश बिल में होता है। यहाँ हम लोग परचेस बुक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चूंकि परचेस बुक उधार पे होता है, क्रेडिट पे, सो क्रेडिट में सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट नहीं दिया जाता। सो ट्रेड डिस्काउंट इफ डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस। सो देखो बेटा, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? बिल होता है। अगर हमने गुड्स खरीदा दुकान पर बेचने के लिए, तो उसका हमें बिल मिलेगा हमारे सेलर से, उसमें लिखा होगा कि किस डेट को हमने खरीदा, ठीक है, क्या क्या गुड्स खरीदा, किस रेट से खरीदा, टोटल कितना हुआ, फिर डिस्काउंट अगर है तो उसको घटाया जाएगा, अब नेट अमाउंट कितना देना है, ये सब लिखा रहेगा। तो ये होता है इनवॉइस या परचेस बिल, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम रिकॉर्ड करते हैं। तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर द परचेस बुक। यू कैन टेक द एसेस ऑफ दिस। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेट ऑफ परचेस बुक। तो मैं आपको बता दूं, परचेस बुक का फॉर्मेट दो तरीके से है यहाँ पर, ठीक है। एक है विदाउट जीएसटी और एक है विद जीएसटी। आज जो मैं शेयर करूंगा वो विदाउट जीएसटी में शेयर करूंगा, यानी बिना जीएसटी के। देखो जीएसटी के साथ जब शेयर करेंगे तो सिर्फ 2 कॉलम और बढ़ेगा, 3 कॉलम और बढ़ेगा। अगर हम इंटर स्टेट बिजनेस करते हैं तो आईजीएसटी के लिए कॉलम बनेगा, और इंट्रा स्टेट करते हैं, मतलब अगर सेम स्टेट में करते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का कॉलम ऐड होगा, ठीक है। अगर जीएसटी नहीं है तो जीएसटी कॉलम हम बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि अभी हम आपको बिना जीएसटी के सिखाएंगे, ताकि मेन तो यही है। जीएसटी में तो सिर्फ कॉलम ऐड होंगे और जीएसटी का पैसा हम उसमें लिखेंगे, ठीक है। तो आज हम सिंपल आपका फॉर्मेट शेयर करते हैं। सो देखो बेटा, ये है फॉर्मेट, इट्स अ वेरी सिंपल परचेस बुक। पहला कॉलम है आपका
डेट का, इसमें क्या लिखेंगे कि किस डेट को हमने गुड्स खरीदा। दूसरा कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, यानी विवरण होगा, डिटेल होगा कि क्या क्या सामान खरीदा। अच्छा बेटा, पर्टिकुलर्स में आप ब्रैकेट में उसके नीचे लिख सकते हैं अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। ऐसा क्यों? आपको जर्नल एंट्री याद होगा, आप मान लो मिस्टर रवि से गुड्स उधार खरीदे, तो आप जनरल एंट्री क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, तो यहाँ रवि को क्या किया आपने, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। सो यहाँ अकाउंट टू बी क्रेडिटेड हो जाता है सप्लायर का, इसलिए पर्टिकुलर के नीचे चाहो तो आप अकाउंट टू बी क्रेडिटेड भी लिख सकते हो। अब है तीसरा कॉलम इनवॉइस नंबर का। जब हम कोई सामान खरीदेंगे तो हमको बिल मिलता है और उस बिल पे एक सीरियल नंबर पड़ा होता है ऊपर, ठीक है। वो सीरियल नंबर ही यहाँ पर इनवॉइस नंबर होता है, एज ए रेफरेंस के रूप में हम यूज़ करते हैं। मान लो हमने गुड्स खरीदा और वो सारे गुड्स इनवॉइस बिल में लिखा है कुछ दूसरा गुड्स और हमें मिला है कुछ दूसरा गुड्स, तो हम उस इनवॉइस नंबर का रेफरेंस देके बता सकते हैं कि इस बिल नंबर में आपने ये सामान लिखा है लेकिन हमको दिया है ये रेट से, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग इनवॉइस नंबर को एज ए रेफरेंस यूज करते हैं। फिर है लेजर फोलियो। देखो बता, परचेस बुक इज जस्ट लाइक अ जर्नल, तो परचेस जर्नल के बाद क्या होता है, लेजर बनाया जाता है। तो जितना उधार खरीदते हैं गुड्स परचेस बुक में रिकॉर्ड करते हैं, फिर बाद में परचेस अकाउंट बनाएंगे, जो कि आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। तो परचेस अकाउंट में कैश और क्रेडिट दोनों परचेस रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो इसका लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं, तो LF वाले कॉलम में लेजर का पेज नंबर लिखते हैं जिस पन्ने पर ट्रांसफ़र करते हैं। डिटेल में क्या होता है कि क्या क्या गुड्स किस रेट से ख़रीदा है, उसका टोटल अमाउंट होता है। फिर उसमें से जो डिस्काउंट वगैरह होता है घटाने के बाद जो फाइनल अमाउंट आता है वो अमाउंट वाले कॉलम में लिखते हैं। लिखने के बाद जितने लोगों से गुड्स उधार खरीदा सारा डिटेल इसी परचेस बुक में होता है। अलग अलग सप्लायर से खरीदे हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तो मान लो 3 लोगों से खरीदा, तो कुल गुड्स कितना खरीदा, तो अमाउंट वाले में फाइनल टोटल करेंगे लास्ट में कि कुल कितने रुपए का गुड्स उधार खरीदा। जितना टोटल आएगा उस टोटल अमाउंट को परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए लास्ट में लिखेंगे परचेज अकाउंट, और चूंकि परचेज हमेशा डेबिट होता है इसलिए उसके डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। अगर जीएसटी होगा तो यहीं पे एक कॉलम कॉस्ट का बढ़ जाएगा, एक जीएसटी का, CGST, SGST, IGST का कॉलम सिर्फ ऐड हो जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं है, हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग सिंपल पढ़ लेते हैं। सो आई होप स्टूडेंट फॉर्मेट इज रेडी विद यू। समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. ओके बेटा, चलो हम लोग चलते हैं अगले क्लास में, Yes, sir. मतलब अगला नेक्स्ट स्लाइड। सो कॉलम ऑफ परचेज डे बुक, इसी परचेज बुक को परचेज डे बुक भी कहते हैं, जैसा कि अभी मैंने शेयर किया वर्बली। पहला कॉलम डेट का होता है, इसमें डेट ऑफ क्रेडिट परचेज इज रिटेन, जिस डेट को हम उधार खरीदेंगे वो लिखा जाता है। फिर पर्टिकुलर कॉलम में लिखते हैं नेम ऑफ पर्सन या फर्म फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज्ड इज रिटेन, जिससे हमने गुड्स उधार खरीदा है उस पर्सन का नाम लिखते हैं। फिर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स बॉट लाइक क्वांटिटी, नेम ऑफ आइटम, रेट, ग्रॉस अमाउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट एंड वैट इज रिटेन। अगर वैट है तो वैट चूँकि अब नहीं होता इसलिए वैल्यू एडेड टैक्स हम नहीं लिखेंगे, और मतलब अगर दिया होगा टैक्स वगैरह तो वो लिखेंगे, वैट की जगह GST लिख सकते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर में इतनी सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। पहले जिससे ख़रीदा है उसका नाम लिखेंगे, फिर क्या क्या सामान खरीदा, कितना सामान खरीदा, किस रेट से ख़रीदा वो लिखेंगे, और लास्ट में अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो वो घटाएंगे, फिर उसके बाद अगर GST है तो वो ऐड करेंगे, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे इनवॉइस नंबर लिखते हैं। इनवॉइस नंबर इज़ द बिल और बिल इज़ रिकॉर्डेड इन द कॉलम ऑफ इनवॉइस नंबर, ठीक है। फिर लेजर फोलियो, जैसा कि मैंने बताया, पेज नंबर ऑफ लेजर इज रिटेन वाइल पोस्टिंग द ट्रांजैक्शन इनटू लेजर। फिर डिटेल में लिखते क्या है, डिटेल ऑफ वेरियस आइटम्स बॉट फ्रॉम अ पर्टिकुलर डीलर। किसी भी हर डीलर से अलग अलग गुड्स खरीदते हैं, तो जिस डीलर से जो सामान खरीदा उसका डिटेल वाले कॉलम में अमाउंट होगा, फिर उसमें से ट्रेड डिस्काउंट भी घटाएंगे उसी कॉलम में,
और फाइनल अमाउंट जो आएगा घटाने के बाद उसे अमाउंट वाले कॉलम में दिखा देंगे, दैट इज द लास्ट कॉलम। ठीक है, अब अमाउंट ये लास्ट कॉलम है। नेट अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजेक्शंस इज फाइनली रिकॉर्डेड इन दिस कॉलम। The total of this column is finally debited to purchase account in the ledger. So I hope student column section is clear to all of you कि what is the meaning of name of the column, जो लिखा रहता है क्या लिखता है. You can take the essence of this. Now I'm coming to the next. Yes, sir. Okay. सो ये क्वेश्चन मैं शेयर करने जा रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, सो आप ध्यान रखना क्वेश्चन पे जब मैं शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो लिखा है इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द परचेज बुक ऑफ राजधानी इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली। अब क्वेश्चन है, ईयर नेम है 2020 और किस मंथ में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जनवरी महीने की 3 तारीख को आपने क्या किया। चूँकि आपकी दुकान क्या है, ध्यान रखना बेटा, परचेज बुक में ध्यान रखना जरूरी है कि आप किस चीज़ में डील करते हो। तो आप राजधानी इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी इससे ये प्रूव होता है कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की दुकान है। आप पंखा बत्ती यही सब बेचोगे, एसी फ्रिज, ठीक है, ये सारी चीज़ों में डील करते हो आप। सो यहाँ पे कह रहा है 3 जनवरी को आपने खरीदा, बॉट फ्रॉम भारत इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारिका दिल्ली, यानी दिल्ली में आपका भी बिजनेस है, दिल्ली में आप जिससे खरीद रहे हो उसका भी है। सो आपने भारत इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारिका, दिल्ली इज़ द प्लेस, ये भी लिखना ज़रूरी है। ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा। इनवाइस नंबर है 1238। क्या क्या खरीदा देखते हैं। देखो बेटा, आपने खरीदा 100 ट्यूबलाइट्स। क्या खरीदा, 100 ट्यूबलाइट्स खरीदा। किस रेट से, एट द रेट ऑफ ₹40 ईच। ठीक है, फिर आपने क्या खरीदा, 50 टेबल फैंस। 50 टेबल फैन खरीदा एट द रेट ऑफ ₹415 ईच। 415 रुपये के हिसाब से टेबल फैन खरीदा 50 टो। अब 30 इलेक्ट्रिक आयरन भी खरीदा बजाज कंपनी का एट द रेट ऑफ ₹200 ईच। ठीक है, अब कह रहा है कि आपने जो सामान खरीदा भारत इलेक्ट्रिक कंपनी से, वो आपको ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहे हैं 10% का। सो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी आपने सिर्फ एक सप्लायर से खरीदा। ठीक है, क्योंकि परचेज बुक में कई लोगों से खरीदते हैं हम लोग, तो अलग अलग सप्लायर का। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन, स्क्रीनशॉट बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, तो फिर अब दूसरा स्लाइड एक सेम क्वेश्चन का ही है, ये 3 जनवरी को है। अब आप इसके बाद जो खरीद रहे हो जनवरी 9 को, ध्यान दो, जनवरी 9 को आपने क्या खरीदा, परचेस्ड फ्रॉम अशोका ट्रेडर्स करोल बाग। आप देखो इसमें क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है, एक मिनट। यस, सो आपने क्या खरीदा, आप देखो यहाँ पे बता रहा है कि परचेज फ्रॉम अशोका ट्रेडर्स करोल बाग न्यू दिल्ली, ये भी दिल्ली में ही, और आपने क्रेडिट पे खरीदा उधार। इनवाइस नंबर है 551। क्या खरीदा, 30 सीलिंग फैंस पोलर कंपनी का एट ₹600 ईच। फिर उसके बाद आपने खरीदा 20 मिक्सी ग्राइंडर, होगा मिक्सी ग्राइंडर लिखा हुआ है, सो बाय मिस्टेक यू विल राइट मिक्सी ग्राइंडर उषा कंपनी का 500 ईच। फिर आपको ट्रेड डिस्काउंट में मिल रहा है 15% का, राइट। सो ये तो हो गया दूसरा ट्रेडर बेटा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन, स्क्रीनशॉट हो गया। Yes, sir. ओके, Yes. अब जनवरी 29 को देखो क्या कह रहा है, उसी क्वेश्चन में 29 को कह रहा है कि आपने जो खरीदा किससे, बॉट फ्रॉम लक्ष्मी फर्नीचर्स। किससे खरीद रहा, लक्ष्मी फर्नीचर से। इसका मतलब कि लक्ष्मी फर्नीचर्स फर्नीचर की दुकान है रोहताक में।
और आपने खरीदा उधार, ठीक है। इनवॉइस नंबर 4312, क्या खरीदा? 2 टेबल एट ₹2000 ईच और 10 चेयर्स एट ₹400 ईच, राइट। सो ये दो चीज आप खरीदा। तो अब आप लोग बताइए कि आपकी दुकान किस चीज की है, फर्नीचर की है या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की? अदिति, आपकी शॉप किस चीज की है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है या फर्नीचर की है? इलेक्ट्रॉनिक शॉप है सर। वेरी गुड। जब इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो गुड्स आपके लिए फर्नीचर होगा या इलेक्ट्रॉनिक आइटम होगा? इलेक्ट्रॉनिक आइटम। वेरी गुड, एग्जैक्टली। तो ये जो टेबल और चेयर बाद में खरीदा है, क्या उसका रिकॉर्ड होगा परचेज बुक में? नो सर। वेरी गुड No, बेटा, sir. बहुत अच्छे। नहीं होगा तो चले, हम लोग चूंकि एंट्री तो इसी तरह दिया रहता है, इसी में कहीं कहीं कैश ट्रांजेक्शन भी दे देता है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज होकर सब लिख देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पूरे ट्रांजेक्शन में से सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे परचेज बुक में जो कि गुड्स हो और उधार हो। ना तो कैश ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होगा परचेज बुक में, ना ही एसेट्स का होगा, राइट। तो चलते हैं अब हम लोग सोल्यूशन पे। सो आई होप कि इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, नहीं लिया तो आप ले लो। Yes, sir. यस, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इन द बुक्स ऑफ राजधानी इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली। सो पहले नाम लिखेंगे, जो आपके बिजनेस का नाम है, आपकी दुकान का नाम है राजधानी इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, दिल्ली में। और आपके ही बिजनेस का परचेस बुक बनाने जा रहे हो, तो परचेस बुक लिख सकते हो या तो परचेस जर्नल लिख सकते हो, कोई भी एक। परचेस बुक बना रहे हो तो बुक ही लिख लो, ज़्यादा बेटर है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। चूंकि देखो यहाँ पर मैंने फॉर्मेट शेयर किया, आपको डेट होगा पर्टिकुलर, इनवॉइस, एलएफ, डिटेल, अमाउंट। पर्टिकुलर्स में मैंने अकाउंट टू बी क्रेडिटेड भी लिख दिया है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि सप्लायर का अकाउंट हमेशा क्रेडिट करते हैं गुड्स खरीदते समय। सो पहला ट्रांजेक्शन 2020 में 3 जनवरी को आपने खरीदा किससे? भारत इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारिका दिल्ली। ऐसे पहले सप्लायर का नाम लिख लो, अब इसे अंडरलाइन भी चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इस सप्लायर को अंडरलाइन कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे। एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर ऐसे हम बता रहे हैं कि इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप, पूरा मतलब उसी से जब आप बनाएंगे तो, ठीक है। तो भारत इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारका दिल्ली हो गया। अब हमने इनसे खरीदा तो इनसे बिल जो मिला वो बिल नंबर था 1238। अब क्वेश्चन में देख लो, अगर बिल नंबर नहीं दिया होगा बेटा तो डोंट गेट कंफ्यूज, आप डैश कर दोगे, ठीक है। क्या खरीदा? 100 ट्यूबलाइट्स एट ₹40 ईच, 50 टेबल फैंस एट ₹415 ईच, 30 इलेक्ट्रिक आयरन एट ₹200 ईच। सो अब देखो 100 में 40 का मल्टीप्लाई करो तो डिटेल में आएगा 4000। फिर 50 टेबल फैंस का 415 में मल्टीप्लाई करो तो 20750 आएगा। फिर 30 इलेक्ट्रिक आयरन का 200 में मल्टीप्लाई करो तो 6000। अब टोटल करो तो आ रहा है 30,750। अब क्वेश्चन में देखो, द्वारिका जी ने हमको, जो भारत इलेक्ट्रिक कंपनी है, इन्होंने हमको ट्रेड डिस्काउंट दिया 10% का। सो लेस Yes, sir. 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 10% 30,750 का कैलकुलेट करेंगे तो एक जीरो हटा दो, 3075 आएगा, माइनस कर दो तो नेट अमाउंट जो फाइनल अमाउंट आया 27675। वेरी गुड, 27,100. यस यस एग्जैक्टली। सो यहाँ तक हमने भारत से खरीदा। अब 9 तारीख को आते हैं, अशोक ट्रेडर से खरीदा, तो लिखेंगे अशोक ट्रेडर, करोल बाग, न्यू दिल्ली। सबका एड्रेस भी लिखेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि सेम नाम का सप्लायर हो सकता है, तो एड्रेस रहेगा तो पता चल जाएगा। तो 30 सीलिंग फैंस एट ₹600 ईच, 20 मिक्सी ग्राइंडर्स एट ₹500 ईच, दैट्स इट। और ट्रेड डिस्काउंट है 15%। सो 600 इंटू 30 विल बी 18,000। इनका इनवाइस नंबर 551 है, वो ध्यान रखना। 18,000 का हमने सीलिंग फैन खरीदा और 10,000 का मिक्सी ग्राइंडर, क्योंकि 20 मिक्सी खरीदा 500 रुपये के रेट से। टोटल हमने खरीदा 28,000 का। 15% ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे तो आएगा 4,200। सो माइनस कर दो, फाइनल अमाउंट 23,800। अब इसके बाद आपका 29 को आपने लक्ष्मी फर्नीचर से फर्नीचर खरीदा है बेटा।
तो फर्नीचर आपका गुड्स नहीं है, फर्नीचर एसेट्स है, इसलिए फर्नीचर का रिकॉर्ड 29 वाला हम नहीं करेंगे, राइट। अब सीधे हम टोटल करेंगे। एक महीने मान लो 2 ही लोग से खरीदा, 2 से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, मान लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए हैं 2 लोगों से हमने खरीदा, तो टोटल अमाउंट कर दो 51,475। ये क्या बता रहा है कि इस महीने आपने कुल इतने रुपए का गुड्स उधार खरीदा। तो अब ये गुड्स कहाँ ट्रांसफर करेंगे? परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और सिंस वी नो दैट परचेज अकाउंट ऑलवेज बी डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेज होता है, सो 31st को हमेशा महीने की लास्ट डेट को टोटल करेंगे और टोटल अमाउंट को परचेस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट, देखो आप लिखा है यहाँ पर परचेस अकाउंट डेबिट और 51,475, राइट। सो यहाँ तक बेटा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड। यू कैन टेक द एसेस ऑफ दिस, जस्ट टेक द एसेस ऑफ दिस। डन? Yes, sir. Sir. Okay. Yes, sir. So now beta आज का Yes, sir. क्लास ओवर। आई होप कि you have understood. Now one homework is for you people. Do practice from the textbook question number 1 only. आप लोग अपने Okay, sir. नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 1 विदाउट जस्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है? Okay, sir. हाँ, और Yes, आप लोग sir. बेटा हाँ, आप लोगों ने हमें बताया नहीं कि किसको किसको जर्नल एंट्री और पढ़ना है।